So this is our first class. पुष्पलता वो जो मैं उसके गुप्ता के थ्रू है. This is our first lecture on the Palo Alto. And before starting the Palo Alto, you must have the knowledge of the IPv4 addressing and ACL, Access Control List, that we have studied in CCNA. And we also must have the knowledge of the NET, Network Address Translation. And few little knowledge belongs to the routing, that can be the static or dynamic routing. Before starting the class, we will discuss the syllabus. That is the syllabus that we will follow. The first topic is introduction of the firewall and the flow logic. Flow logic जो topic है, it's a very important topic, like the OSI model in CCNA. That is our topic. And after that, we will go to the how we can access the Palo Alto via CLI and GUI mode, basic configuration of the Palo Alto. And this topic we will consider later on. Licensing software and dynamic update. This topic is similar to the CCNA security. In CCNA security, we define the multiple users and we can define the multiple roles. कोई यूज़र उसमें इंटरफेस लेवल की कमांड चला सकता है, कोई राउटिंग बेस कमांड चला सकता है, कोई केवल देख ही सकता है. वी कैन गिव द डिफरेंट प्रिविलेज टू द मल्टीपल यूजर्स. यूजर्स का डेटाबेस लोकली भी बनाया जा सकता है और कहीं पर वी कैन create the centralized configuration in the LDAP server or in the Radius or TechArcs. So that is the topic we will discuss later on. After the flow logic, we will move to the this topic, and after that we will move to Palo Alto interfaces. That we will consider after completing the half or one third syllabus. What is the tap mode? I think you have studied in CCNP span, SPN span, or port mirroring. Port MIRROR mirror. भुवनेश, ये आपने पढ़ा है कि नहीं, स्पैन और पोर्ट मिररिंग इन CCNP? भुवनेश, मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है भुवनेश.
को मेरी आवाज आ रही है भुवनेश? आप क्या यस ये टॉपिक आपने स्टडी किया है स्पैन का या पोर्ट पेयरिंग का? सर, यस सर। ठीक। तो लाइक दैट वी कैन यूज दी Palo Alto mode in tap mode. Any interface of the Palo Alto we can use the in tap mode, and by default each interface belongs to the tap mode. Same interface we can use in the layer 2 mode, but at a time either we can use the tap mode or we can use the layer 2 mode. In the switching, if we apply the command on the privilege mode, show MAC address table, this command will display the VLAN ID and ports and MAC address. On which port, which MAC address is either manually और statically learn किया गया है. तो सेम वे में हम Palo Alto को एज ए लेयर 2 की तरह बिहेव करवा जा सकते हैं. लेयर 3 जैसे कि राउटर वर्क करता है, Palo Alto एज ए राउटर की तरह भी काम कर सकता है. वर्चुअल वायर, वर्चुअल वायर एक कॉन्सेप्ट था दैट वाज इन एमपीएलएस में. आपने सूडो वायर पढ़ा है? एमपीएलएस के अंदर सूडो वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने? दैट इज इक्वलेंट टू द वर्चुअल वायर इन Palo Alto. एक वर्चुअल वायर में केवल दो ही पोर्ट आ सकते हैं और वो नॉन आईपी पोर्ट होते हैं. ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए रनिंग नेटवर्क में इसको यूज कर सकते हैं. अलग से इसकी लैब करवाई जाएगी, जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है किस पोर्ट का क्या फंक्शन है. जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट पोर्ट का मतलब है जैसे कि L2 स्विच के अंदर हम ईथर चैनल बनाया करते थे और ईथर चैनल के अंदर दो प्रोटोकॉल होते थे, LACP एंड PAGP. चूंकि PAGP बिलोंग्स टू द सिस्को, दैट्स वाई Palo Alto इसको तो यूज नहीं करेगा, इसको यूज करेगा. बट ये एग्रीगेट का जो कॉन्सेप्ट है केवल फिजिकल डिवाइस पर ही पॉसिबल है. वर्चुअल इंस्टेंस पे एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है इन HA, इन Palo Alto. HA का मतलब है हाई अवेलेबिलिटी. जैसे CCNA के अंदर हमने रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स पढ़े थे. कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स? जी भुवनेश, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं? मेरी आवाज आ रही है भाई? आई एम नॉट गेटिंग द रिप्लाई, यस और नो? यस सर, यू आर वेरी मच ऑडिबल सर। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द रिडंडेंसी प्रोटोकॉल इन CCNA? याद है या नहीं याद है? नो सर, डिडंट रिमेम्बर सर। वहां पर हम पढ़ते थे HSRP, VRRP and GLBP. Like that we can use the Palo Alto in HA mode. HA को दो तरीके से हम डिप्लाई कर सकते हैं. एक्टिव, एक्टिव हो सकता है और एक्टिव पैसिव हो सकता है. पैसिव। जैसे HSRP में एक्टिव स्टैंड बाय था या एक्टिव एक्टिव होता था. We can also make the Palo Alto as a DSCP server and also make the DSCP client. दोनों ही फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं.
फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जोन का। जोन बेसिकली ये एक लॉजिकल बाउंड्री है। जैसे हम ओएसपीएफ में पढ़ते थे, एरिया एक लॉजिकल बाउंड्री है। सीसीएनए के अंदर स्विचिंग पढ़ते थे, स्विचिंग के अंदर वीलान एक लॉजिकल बाउंड्री है। ये सभी लैन क्या वन। कोई स्विच बिना वीलान के एग्जिस्ट करता है जो कि कैटलिस्ट स्विच हो? आंसर इज नो। बाय डिफॉल्ट अगर कोई स्विच है एंड वी हैव द मल्टीपल पोर्ट्स इन द स्विच, तो बाय डिफॉल्ट रूल इज दैट all the ports of the switch belongs to भी लैन वन से। one. That is known as native VLAN or नेटिव VLAN। VLAN. And VLAN is directly proportional to broadcast domain के होता है। Whatever the information you are sending on one port वो सारे पोर्ट पर जा रही होती है। यस सर। और अगर वो डिफरेंट वीलान हो जाएं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक कि लेयर 3 डिवाइस ना हो। वीलान ए कैन नॉट कम्युनिकेट टू दी, भी लैन बी। उनके लिए हमने एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है जो कि राउटर होता है। ऐसे ही पोलो अल्टो में मैंडेटरी पैरामीटर है, ईच इंटरफेस ईच इंटरफेस मस्ट बी द मेंबर ऑफ जोन। जोन का मेंबर होना ज़रूरी है। जैसे स्विच के अंदर हर एक इंटरफेस का किसी न किसी वीलान में होना ज़रूरी है। अगर किसी इंटरफेस को वीलान से निकाल दिया जाए तो वो आउट ऑफ बैंड हो जाता है, वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा किसी से। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम पॉलिसीज बनाते हैं तो पॉलिसी तभी एक्टिव होगी जब जोन डिफाइन किया गया होगा। तो जोन बनाया जाएगा, जोन बनाने के बाद इंटरफेस को उस बात में मैप करना ज़रूरी है। सिस्को के राउटर में तो केवल था कि वी आर गोइंग टू द जस्ट इंटरफेस पर जाते थे। किसी भी इंटरफेस पर जाना है, कोई एक राउटर है और इस राउटर का ईथरनेट है, लेट्स से वी हैव दिस आईपी एड्रेस, मास्किंग इट, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर जाके इंटरफेस ईथरनेट एंड वी कैन अप्लाई द आईपी एड्रेस 10.1.1 एंड मास्किंग इज दिस वन एंड नो शिट। और यहाँ से ये एक्टिव हो जाया करता था और प्रिविलेज मोड के ऊपर जाके वी कैन टेस्ट इट 10.1.1.1 एंड वी आर गेटिंग द रिप्लाई। बट इन केस ऑफ दी पोलो ऑल्टो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पोलो ऑल्टो में एक इंटरफेस को एक्टिव मोड में लाने के लिए हमें एक जोन बनाना पड़ता है, फिर इंटरफेस के ऊपर इसको मैप करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर आईपी और मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जिस तरीके से वी आर गेटिंग दी रिप्लाई इन सिस्को रूटर, पोलो ऑल्टो के अंदर हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा। इंटरफेस से अगर हम पिंग करेंगे तो हमें एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है जिसको एम टी प्रोफाइल कहते हैं, और इसके अंदर हमने क्या उससे फीचर लेना है, क्या सर्विस लेनी है, तो पिंग को एक्टिवेट करना पड़ता है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है एमपीएलएस के अंदर वीआरएफ। वीआरएफ के बारे में पढ़ा है आपने? जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वीआरएफ? सर नो आइडिया सर। वीआरएफ का फुल फॉर्म है वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। इसका इसका रिलेशन एमपीएलएस से तो नहीं है, बट एमपीएलएस इसको यूज़ करता है। बट जनरली हम ये समझ लेते हैं कि इट बिलोंग्स टू दी एमपीएलएस। इसका फंक्शन ये होता था कि एक जैसे स्विच आपके पास मौजूद है,
इस स्विच के सारे जो पोर्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एक ही वीलान के अंदर हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि इस फिजिकल स्विच को अंदर दो वीलान बना दें, वीलान 10 और लेट्स से वीलान 20, तो अब अगर इफ़ यू विल कनेक्ट योर डिवाइस ऑन दी पोर्ट नंबर ए और यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इसकी रिक्वेस्ट जब जाएगी तो ये केवल यहाँ तक ही जाएगी, 2 3 4 तक। 5 6 7 8 9 पर इसकी साउंड नहीं जाएगी, ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। तो हमने विद दी हेल्प ऑफ दी वीलान क्या कर लिया, वर्चुअलाइजेशन कर लिया। एक स्विच को दो लॉजिकल स्विच में डिवाइड कर दिया। ये स्विच 1 बन गया और यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, स्विच 2 बन गया, वर्चुअल स्विच बन गया। यानी ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे अलग अलग हार्डवेयर हो गए हैं। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ द वीआरएफ हम क्या करते हैं कि जो राउटर होता है, राउटर के अंदर जो राउटिंग टेबल होती है, जब हम कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट, तो शो आईपी राउट में हमें जो आउटपुट नज़र आती है, उस आउटपुट को हम कहते हैं एमपीएलएस की लैंग्वेज में ग्लोबल राउटिंग टेबल। अगर हम ये चाहते हैं कि एक राउटर को लॉजिकली मल्टीपल रूटर्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो ये क्या कर देगा वीआरएफ, इट विल डिवाइड वन फिजिकल राउटर इनटू मल्टीपल लॉजिकल राउटर्स। ये मल्टीपल लॉजिकल राउटर्स में डिवाइड कर देगा। तो वर्चुअल इंस्टेंसेस ये बना देगा। और जैसे कि अगर आपके पास कोई रूटर है, उस रूटर पर अगर लाइट से ये ईथरनेट है और ये ईथरनेट 1 है, तो इफ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस आईपी एड्रेस ऑन दिस पोर्ट, मास्किंग इज इट, क्या ये पॉसिबल है कि ईथरनेट 1 के ऊपर आई कैन अप्लाई दिस आईपी एड्रेस? इज इट पॉसिबल? जी भाई, क्या ये, यस सर। हाँ जी पॉसिबल है। यस सर। मतलब एक ही नेटवर्क आईडी के दो आईपी एड्रेस अलग अलग इंटरफेस पर डाल सकते हैं? चेक किया कभी आपने? सर वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल पोर्ट पे डाल सकते हैं सर। नहीं, वर्चुअल की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली बात कर रहे हैं, विदाउट वीआर। हाँ, आईपी सेकेंडरी डलती है सर, पहले नहीं प्राइमरी और सेकंड, सेकंड। नहीं सेकेंडरी तो ओनली सेम इंटरफेस पर होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी एक ईथरनेट 0 है, एक और एक। ईथरनेट 1 है। एक पर आईपी डाला 10 1 1 1/8, दूसरे इंटरफेस पे डाला 10 1 1 2/8। तो दोनों की जो नेटवर्क आईडी हो गई वो कितनी हो गई, 10 0 0। यस सर। तो क्या ये राउटर एक्सेप्ट कर लेगा? आंसर इज नो। यस, नो नो सर, बिकॉज each राउटर router is having this different network. हर एक इंटरफेस पे डिफरेंट एनआईडी होना चाहिए, अदरवाइज वो Yes, कहेगा कि नेटवर्क आईडी इज ओवरलैपिंग yes, दिस yes, yes, इंटरफेस। बट प्रैक्टिकल सिनारियो में क्या ऐसा होगा कि हर एक क्लाइंट के लिए आईएसपी का पी राउटर क्या डेडिकेटेड होगा आज की डेट में? क्लाइंट 1 के लिए क्या आईएसपी एक अलग हार्डवेयर लगाएगा और क्लाइंट 2 के लिए आईएसपी एक अलग हार्डवेयर लगाएगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये no sir. feasible है? नॉट फिजिबल। इतना पैसा कहाँ से लेकर आएगा? हाँ, very expensive sir. Yes sir. तो वो क्या करेगा कि वो डेडिकेटेड नहीं लगाएगा, वो C2 को भी इसी से कनेक्ट करेगा। अब द क्वेश्चन इज दैट कि अगर इस क्लाइंट ने इस कनेक्टिविटी के लिए आईपी एड्रेस की जो स्कीम चूज किया वो 10.0.0/8 किया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और दूसरा जो क्लाइंट है उसकी और इसकी जो आईपी सबनेटिंग यूज की जा रही है वो भी इसी ही नेटवर्क की हो अगर, और यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पर भी 2 हो, तो ये क्लाइंट साइड तो दोनों क्लाइंट अलग हैं, Yes sir. कोई Different दिक्कत client. की बात नहीं है।
लेकिन आईएसपी के साइड पर इशू ये हो गया कि एक ही सबनेट से बिलोंग करते हुए आईपी आ गए, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? आंसर इज नो। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट वन के लिए एक वीआरएफ बना देंगे। वीआरएफ लेट से CE1 कस्टमर वन के लिए, और एक वीआरएफ बना दी जाएगी दूसरे इंटरफेस पर वीआरएफ CE2 के लिए। नाउ अब ये राउटर ये आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर सकता है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सेम उसी तरीके से है कि जैसे कोई एक स्विच होता और उस स्विच के ऊपर मल्टीपल अगर पोर्ट्स होते और एक पीसी को आप यहाँ पे अटैच करते, उसका आईपी 1011 होता, दूसरे पोर्ट पर एक पीसी को अटैच करते उसका आईपी 1011 होता, तो आपको क्या मैसेज आता? आईपी एड्रेस। क्या मैसेज आता अगर दोनों मशीनों के आईपी एड्रेस ए बी के सेम हो जाएं स्विच के ऊपर, तो क्या मैसेज आता है आपको? जी, हाँ। आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। इफ ठीक है सर। two or more machine have the same IP address in a same switch लगे होंगे, तो मैसेज आएगा आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर इसको वीलान 2 में डाल दिया जाए और इसको वीलान 3 में डाल दिया जाए, तो अब आपको मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्चुअल स्विच हो गए हैं। यस सर, बिकॉज इट आर नॉट रीचेबल विथ ईच अदर। जी, ऐसे ही ये वीआरएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ। यहाँ पर इन केस ऑफ दी जो डिस्कशन करना था, इतना जो डेप्थ हो गया जाकर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है वीआर का। इन केस ऑफ दी Palo Alto, वीआर का मतलब है वर्चुअल राउटर। virtual router is the same, that is equivalent to the VRF in traditional routing. So in case of the Palo Alto, if you want to apply IP address on the interface, आपको जोन बनाना पड़ेगा, इंटरफेस को जोन का मेंबर बनाना पड़ेगा, then you will apply the IP address, then apply the management profile, देन यू विल अप्लाई दी वर्चुअल राउटर, किसी ना किसी वर्चुअल राउटर में रखना पड़ेगा। इसके बाद भी आपका जो आईपी एड्रेस है वो पिंग नहीं होगा। ये जितना भी आपने किया है इसको कहा जाता है CNDI, कैंडिडेट कॉन्फ़िग। इसको कैंडिडेट कॉन्फ़िग का नाम दिया जाता है। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कमिट, जब हम इसको कमिट कर देंगे, तो कमिट करने के बाद अब ये रनिंग कॉन्फ़िग बन जाएगा जैसे सिस्को के राउटर में होता है। तो हमें पोलो ऑल्टो में इतना मेहनत करना पड़ेगा, सिस्को में केवल हम 3 लाइन का कमांड लिखकर और एंटर करके पिंग टेस्ट कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? जो चीज़ समझ नहीं आई हो, बाकी तो बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लैब करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जोन का। अब यहाँ पर दो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी होती हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज, दो पॉलिसी ऑलरेडी बनी है। एक को कहा गया इंट्रा जोन और दूसरी का नाम है इंटर जोन। अगर हमारे पास एक Palo Alto है एंड वी हैव द इंटरफेस, लेट्स से ईथरनेट 0, ईथरनेट 1 एंड ईथरनेट, लेट्स से यहाँ पर ए मशीन अटैच, यहाँ पर बी मशीन अटैच है, यहाँ पर सी मशीन अटैच है। इनके जोन डिफाइन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो जोन है इसका नाम फॉर एग्जांपल ट्रस्ट है, इस जोन का नाम भी फॉर एग्जांपल ट्रस्ट है, एंड जो मशीन सी है उसका जो ट्रस्ट है जोन नहीं है, लेट से वो अनट्रस्ट जोन है। तो इफ वी आर सेंडिंग द ट्रैफिक फ्रॉम ए टू बी, तो किस जोन से किस जोन में ट्रैफिक जा रहा है? ए का जोन क्या है, बी का जोन क्या है? ए बिलोंग्स टू विच जोन एंड बी बिलोंग्स टू विच जोन?
A belongs to sir इंट्रा जोन. नहीं, कौन सा जोन है? ट्रस्ट और ट्रस्ट यस सर. दोनों सेम जोन है। तो जब सेम यस सर. जोन से टू सेम जोन ट्रैफिक जाएगा तो ये हम्म. आपके पास इंट्रा आ जाएगा। एंड इफ वी आर गोइंग ए टू सी या बी टू सी, तो ये कौन सी जोन का कम्युनिकेशन होगा? इंटर जोन का। थर्ड जोन. तो इंटर जोन के अंदर ट्रैफिक डिनाय है। ये बाय डिफॉल्ट अलाउ है। ये बाय डिफॉल्ट अलाउ है। इफ वी आर गोइंग सेम जोन टू सेम जोन, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक इज अलाउ, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक इज अलाउड। यहाँ पे ट्रैफिक अलाउड है। लेकिन इस केस में बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक इज डिनाइड। ये बाय डिफॉल्ट रूल बने हैं। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड। ये ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्ड है। तो दो जोन ऑलरेडी बने होते हैं पोलो ऑल्टो के अंदर। तो किस तरीके से अलाउ करना होता है, कैसे करना होता है, पॉलिसी में जाके देखेंगे। कैसे पोलो ऑल्टो पर स्टैटिक राउट डालना है, कैसे डिफॉल्ट राउट डालना है, वो उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए रूट रखा जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलडेप सर्वर अगर हमारे किसी जोन में रखा हुआ है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए कोई अगर रिक्वेस्ट फॉलो ऑल्टो पर आती है, तो वो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के लिए जब एलडेप पे जाएगी, तो वेयर इज द लोकेशन ऑफ द एलडेप। या हमारे ऑफिस में कोई एनटीपी सर्वर रखा हुआ है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, जो आपके पास यूडीपी के पोर्ट नंबर 123 पे काम कर रहा होता है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट आती है, तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके लिए जो राउट लिखे जाते हैं वो ये सर्विस राउट के अंदर आता होता है। तो जब लैब आएगी तो बताया जाएगा। उसके बाद नेट का कॉन्सेप्ट आएगा। मल्टीपल तरह के नेट हैं, ये सारे के सारे नेट इंशाल्लाह डिस्कशन किए जाएंगे। फिर जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये EIGRP को सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज EIGRP, ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल सर. हाँ, चूंकि डेटाबेस. पोलो ऑल्टो जो है, इसका जो सीईओ है पोलो ऑल्टो का, उनका नाम है मिस्टर निरजूक, NIRZUK। ये बंदा जूस है, हम्म. इसराइली है, बट जो कि इजराइल, अमेरिका, यस हाँ, सर. अमेरिका के अंदर है। अब पहले इसने निर्जूक ने जो काम किया था 1993 में, वो चेक पॉइंट के साथ में काम किया था। और चेक पॉइंट का आप इसको राइट हैंड बोल सकते हो। ये आपके पास जो डेवलपर और डिज़ाइनर था, यही बंदा था उसका। उसके बाद इन्होंने नेट स्क्रीन को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना पोलो ऑल्टो 2005 में कंपनी जो है लॉन्च कर दी, कैलिफोर्निया के अंदर सांता क्लारा में, अमेरिका में। और 2007 में इन्होंने अपना पहला अपोलो ऑल्टो डिप्लॉय कर दिया। एट दैट टाइम जो EIGRP था, वो सिस्को की प्रोप्राइटरी होती थी। बट 2013 के अंदर से अब ये ओपन स्टैंडर्ड है। EIGRP चाहें तो पोलो ऑल्टो यूज कर सकता है, बाकी मर्जी है उसकी, चाहे ना करे। बट अब 2013 से ये ओपन हो गया है। तो इसके डेटाबेस में EIGRP का डिस्कशन नहीं है। एक टर्म CCNP में पढ़ते थे, PVR, पॉलिसी बेस राउटिंग। तो यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। और PVR के साथ में एक IPSLA होता था। ये दोनों IPSLA, इन दोनों को मिलाकर PVR प्लस IPSLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये दोनों मिलाकर PVF बनते हैं। CCNA में हम पढ़ते थे इंटर वीलान राउटिंग, और इंटर वीलान राउटिंग हम पढ़ते थे राउटर ऑन STIC के स्टिक। यस. तो ये आपके पास
ये इंटरविनल राउटिंग पालो ऑल्टो को हम सब इंटरफेस बना सकते हैं। कैसे सिस्को के राउटर में वीआरएफ बनती थी और कैसे पालो ऑल्टो में बनेगी, वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीआर कैसे बनाएंगे वर्चुअल राउटर। ये रहा कैसे उसको एक्टिव और पैसिव मोड में यूज करेंगे पालो ऑल्टो को। दो तरह के वीपीएन होते हैं, एक साइट टू साइट वीपीएन होता है, एक रिमोट वीपीएन होता है। तो साइट टू साइट में आईपी सेक के बारे में पढ़ेंगे। आईपी सेक पढ़ रखा है आपने पहले या नहीं पढ़ा हुआ है? जी। सर हाँ, डीपली नॉलेज नहीं है सर आईपीसी के बारे में। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे फिर लैब करेंगे फिर। तो साइट टू साइट वीपीएन, एक तो पोलो ऑल्टो टू पोलो ऑल्टो और एक पोलो ऑल्टो टू सिस्को। डिफरेंट वेंडर में कैसे काम करेगा ये हम देखेंगे। फिर जैसे सिस्को में होता था एनी कनेक्ट रिमोट वीपीएन के लिए, पोलो ऑल्टो में रिमोट वीपीएन के लिए ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज किया जाएगा। यानी ये दोनों चीजें बराबर हैं, एक ही काम फंक्शन है दोनों का। जैसे बैंकिंग में आप देखते हैं पैसे ट्रांसफर करते हैं तो रिमोट लॉगिन होता है सिक्योर एसएसएल के थ्रू, सिक्योर यस। सॉकेट लेयर के थ्रू। यूजर आईडी एक कॉन्सेप्ट आएगा जब हम वीपीएन यूजर बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे पोलो ऑल्टो के साथ में, तो इसको कैसे यूज करेंगे वहां देख। पैनोरमा जो है एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक अलग ही टोटल इसका करिकुलम होगा। जैसे कि एस डी वैन, मोहम्मद अफजल हसन, वीडियो को बंद कर लें या बैठ के पढ़ लें। एस डी वैन सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन का, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का, सेंट्रलाइज पॉलिसीज का, सेंट्रलाइज ट्रबल शूटिंग का, सेंट्रलाइज आईओएस की अपग्रेडेशन का। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट पोलो ऑल्टो में पैनोरामा के अंदर किया जाता है। बेसिक ओवरव्यू दे दिया जाएगा, अदरवाइज अलग से एक पूरा ये कोर्स है। ऐप आईडी एक वो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए सिस पोलो ऑल्टो फेमस हुआ। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सबसे पहले अगर कोई कॉन्सेप्ट आया तो वो पोलो ऑल्टो नहीं गया। इसका श्रेय जो है पोलो ऑल्टो को जाता है या मिस्टर निर्जुक की टीम को जाता है। इससे पहले जो हम कंट्रोलिंग करते थे वो हम ये तो कर सकते थे कि हमने कोई सोर्स आईपी लिया, हमने कोई डेस्टिनेशन आईपी लिया, हमने कोई प्रोटोकॉल लिया और हमने कोई पोर्ट नंबर लिया। हम इन चार चीज़ों पर ही एग्जिस्ट करते थे किसी पॉलिसी को लगाने में। बट जिसको आप अलाउ कर रहे हैं उसके अंदर क्या जा रहा है। यानी अगर आपने सोर्स आईपी एड्रेस ये लिया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपने ये लिया, प्रोटोकॉल 6 लिया टीसीपी का, पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट आपने कुछ भी रैंडम लिया आपके पास, डेस्टिनेशन पोर्ट आपने 23 लिया, तो इसको देख के कौन सा ट्रैफिक नजर आता है आपको, कौन सा ट्रैफिक है? सोर्स पोर्ट ये हो, डेस्टिनेशन ये हो, प्रोटोकॉल 6 हो, सोर्स पोर्ट कुछ भी हो, डेस्टिनेशन पोर्ट 23 हो। तो डेस्टिनेशन पोर्ट जो है टीसीपी का 23 हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जी भाई, पोर्ट नंबर 23 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? टेलनेट को सर। टेलनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर मैच हो जाएं
और मैच करने के बाद एक्शन ये ले लिया जाए कि इस ट्रैफिक को परमिट कर दिया जाए या इस ट्रैफिक को डिनाई कर दिया जाए। तो जो भी चीज़ आप लगाएंगे, मैच तो दोनों ही केस में होना है, परमिट में भी मैच करना है, डिनाई में भी मैच करना है। तो अगर आपने ये कह दिया कि ये पॉलिसी लगा दें डिनाई की, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब किसी डिवाइस पे कोई ट्रैफिक आएगा तो वो इस कोटेलनेट के ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आने वाला जो यूज़र है, उस यूज़र ने टेलनेट कर दिया डेस्टिनेशन आईपी को, यानी इसको, और आगे पोर्ट नंबर 80 कर दिया, तो क्या टेलनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी भाई। नहीं होगा। जी भाई, क्या राय है बाकी की? टेलनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने इन चीज़ों को मैच करने के बाद डिनाई कर दिया, तो कायदे में तो टेलनेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप टेलनेट लिखने के बाद ये लिखते हो 80, तो 80 किसके लिए होता है? HTTP। HTTP के लिए। तो आपने पॉलो उसको, राउटर को बेवकूफ़ बना दिया। बाहर क्या लिखा हुआ है आपने एनवलप के ऊपर? 80, पोर्ट नंबर 80 लिखा हुआ है। और अंदर किसका ट्रैफिक जा रहा है? टेलनेट। टेलनेट। तो ये ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास लेयर 4 लेवल, प्रॉक्सी लेवल वाले फायरवॉल थे, उसमें ये इश्यूज था। मिस्टर निर्जूक ने कॉन्सेप्ट दिया एप्लीकेशन आईडी का, यानी इसके साथ उसने फायरवॉल में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी का मतलब हो गया सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन। आपके पीसी में कोई एंटीवायरस पड़ा है? आपने डाला है कभी? यस। यस, मैकेफे का। डाला है। तो अगर कोई वायरस आता है, न्यू मालवेयर आता है, तो पकड़ लेता है इसको? डिटेक्ट डिटेक्ट करता है उसको, उसका अलर्ट दिखाता है। अलर्ट दिखाता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो किल भी कर देते हैं। दोनों तरह के नेचर होते हैं एंटीवायरस के। आईडीएस भी होता है और आईपीएस भी होता है, यस। इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम भी होता है। तो वो जो डिटेक्ट करता है या प्रिवेंट या किल करता है, तो क्या आप आ, किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर उसको डिटेक्ट करते हो या उसको क्वारंटाइन कर देते हो, कैद कर देते हो? कोई रूल तो होगा आपके पास, या ऐसे ही चलते फिर कोई सड़क पे बंदा जा रहा हो उसको बोलो आप चोर हो? ऐसा बोल सकता है पुलिस वाला भी कोई आपको? गया नहीं नहीं। आप सड़क पे जा रहे हो और आपको पकड़ के रोके, भाई साहब आप चोर हो, ऐसा बोल सकता है? और जब वो बोलेगा तो आपके पास अगर हिम्मत है तो आप कहोगे भाई कोई प्रूफ है आपके पास? दिमाग ठीक है कि नहीं है? किस बेस पे पकड़ रहे हो मेरे को? तो उसके पास कोई क्लू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट। तो जब कोई एंटीवायरस किसी आने वाले ट्रैफिक के साथ में कोई डाउनलोडिंग अपलोडिंग कर रहे हैं, तो वो डिटेक्ट करता है वायरस को, तो उस वायरस का उसके पास कुछ ना कुछ तो शक्ल या शेप होगी ना। आप देखते हैं जब कोई पुलिस डिपार्टमेंट को किसी क्रिमिनल की पता लगती है, कोई हादसा हो जाता है, तो उसका एक रफ सिग्नेचर बनवाते हैं। हाँ जी, शक्ल बनवाते हैं और उसको राइट। जहन में लगा देते हैं। अगर उससे मैच करते हुए शक्ल से कुछ लोग मिलते हैं तो उनको उठा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि साहब वही चोर हो, तफ्तीश की जाती है। उसके बाद कुछ को छोड़ दिया जाता है। जो सस्पेक्टेड थे पकड़ने के बाद उनमें से सबको भी छोड़ा जा सकता है। उनमें से हो सकता है कोई एक भी हो। हम्म। तो इसी तरीके से जो भी सिग्नेचर आता है एंटीवायरस का, उसका एक सिग्नेचर पहले से हमारे पास एंटीवायरस में मौजूद रहता है, जो भी वायरस आएगा। तो आने वाले ट्रैफिक को सिग्नेचर से हम मैच करते हैं, ऑन दैट बिहाफ हम उसको रोक लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है या होता है
कि कोई भी फायरवॉल किसी भी हर तरह के फायरवॉल को रोक सक हर हर तरह के वायरस को रोक सकता है क्या? आपने जो मशीन में एंटीवायरस डाल रखा है, क्या वो हर तरह के वायरस को रोक लेता है? मलवेयर को रोक लेता है? नहीं नहीं। तो फिर भी इफेक्ट हो जाती है मशीनें हैं। यस। हो जाती हैं। हम तो छोटे से क्लाइंट हैं, कुछ है ही नहीं। बड़ी बड़ी जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल हो गए हैं जी, फ्लिपकार्ट हो गए, ये तक की आपके पास वायरस से इफेक्टेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा एंटीवायरस नहीं बनाया जाता कि जो सारे वायरस को क्या कर सके, किल कर सके, क्वारंटाइन कर सके, डिटेक्ट कर सके। तो अगर कोई नया वायरस आया, नया सिग्नेचर आया, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके एंटीवायरस को ना हो, तो वो क्या करेगा? उसको अलाउ कर देगा, डिनाई कर देगा? अलाउ कर देगा क्योंकि उसके डेटाबेस में उसका अलाउ पेड कर है ही देगा। नहीं है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट उसने दिए मिस्टर निर्जूक ने। एक तो एप्लीकेशन आईडी का दिया कि अगर आप टेलनेट का पोर्ट अलाउ कर रहे हैं तो उसके अंदर सिग्नेचर भी टेलनेट का वेरीफाई करे, मैच करे। अगर उसके अंदर आपने दूसरा ट्रैफिक भेज दिया तो उसको ड्रॉप मार देगा। इसी तरीके से मिस्टर निर्जूक ने एप्लीकेशन आईडी पे काम किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फेसबुक बंद कर दिया, अगर हम फेसबुक को बंद कर दें तो व्हाट विल हैपन? हमारा जो है फेसबुक बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन पोलो ऑल्टो के अंदर ऑप्शन ये है कि फेसबुक का पूरा डाटाबेस बंद करना है, या उसके अंदर चैटिंग बंद करनी है, या उसके अंदर वीडियो बंद करनी है, या उसके अंदर अपलोडिंग या डाउनलोडिंग बंद करनी है। तो हम स्पेसिफिक यानी माइक्रो ऐप आईडी पे काम कर सकते हैं। ये प्रीवियस में जो पोलो वो थे फायरवॉल, उसमें पॉसिबल नहीं था। फिर एक कॉन्सेप्ट जो दिया इन्होंने मिस्टर निर्जूक ने, जिसके लिए वो फेमस हुए, एक तो एप्लीकेशन आईडी के लिए, दूसरा वाइल्ड फायर के लिए। अगर आपके फायरवॉल में, ये पोलो ऑल्टो है, इंटरनेट से इसकी कनेक्टिविटी है, यहाँ पर एक स्विच लगा है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स बैठे हुए हैं, अगर आपने कोई यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, किसी भी एबीसी साइट पे गई, और वहां से जब रिप्लाई आया, तो अपने साथ में वो पीडीएफ तो लेकर आया, लेकिन इसके साथ में एक नया मालवेयर भी लेकर आ गया, जिसके बारे में पोलो ऑल्टो को पता नहीं है। तो क्या होगा? ये पोलो ऑल्टो पास कर देगा और ये मशीन क्या हो जाएगी? इन्फेक्टेड हो जाएगी, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर कोई वायरस आता है और उसका कोई सॉल्यूशन जब तक हमारे पास नहीं होता है, टेक्निकली कहलाता है वो जीरो डे अटैक। पोलो ऑल्टो ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब कभी भी नया सिग्नेचर इसके पास आएगा, वो मजबूर है, भेज तो देगा आपके पास, लेकिन हाथ के हाथ क्या करेगा कि इसका जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, वो भी इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड होता है। और इस पोलो ऑल्टो के अंदर जो कि रजिस्टर्ड होता है, एक पहले से प्री प्रोग्राम्ड होता है वो पाथ, जो कि वाइल्ड फायर क्लाउड पे जाता है। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही नया सिग्नेचर यहाँ पर आएगा, उस नए सिग्नेचर को यहाँ तो भेजेगा भेजेगा, इसकी एक कॉपी करने के बाद इंटरनेट क्लाउड से वो वाइल्ड फायर क्लाउड पे भेज देगा। यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मल्टीपल एल्गोरिथम के थ्रू ये टेस्ट किया जाएगा कि नया जो सिग्नेचर आया है, ये सिग्नेचर का रिस्क कितना है, इसकी कैटेगरी कौन सी लाई करती है, इसका नेचर क्या है, क्या ये हिडन हो जाएगा, क्या ये क्रेडेंशियल को कॉपी करेगा या क्या करेगा।
तो ये सॉल्यूशन वो पहले 15 मिनट्स में बनाता था। अब उसने इसको कम करके कोई भी नया सिग्नेचर अगर इसके पास आता है तो वो केवल 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन बनाएगा, और सॉल्यूशन बनाने के बाद ये इस पॉलो ऑल्टो को भेज देगा, जिसने नए सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन इस क्लाउड को दिया होगा। और इसके अलावा जितने भी दुनिया में रजिस्टर्ड पॉलो ऑल्टो होंगे, सारे रजिस्टर्ड पॉलो ऑल्टो को भी इस नए वायरस की इंफॉर्मेशन 5 मिनट्स के अंदर मिल जाएगी। जब ये आपके पास आ जाएगा तो ये जो मशीनें इन्फेक्टेड थी उसको हम डाउनलोड करके और यहाँ से इसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले पॉलो ऑल्टो ने दिया। अब ये सारा कॉन्सेप्ट, जिसको सैंडबॉक्सिंग भी बोलते हैं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है हर एक फायरवॉल में धीरे धीरे यूज़ किया जा रहा है। तो पॉलो ऑल्टो एप्लीकेशन आईडी और वाइल्ड फायर के लिए फेमस हो गया। तो हम एप्लीकेशन आईडी की भी अलग से लैब कराएंगे और वाइल्ड फायर की भी अलग से लैब कराएंगे। इसके लिए पॉलो ऑल्टो ने अपने पास कुछ लिंक दे रखे हैं, जिसमें कुछ उसने फाइल्स जो हैं इन्फेक्टेड करके छोड़ रखी हैं, ताकि आप उन साइट्स पर जाएं और उसको डाउनलोड करें तो वो फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन जब हम डाउनलोड कर लेंगे और उसमें ये वाइल्ड फायर को इनेबल कर देंगे तो हम देखेंगे कि वो उन फाइल की रिक्वेस्ट को वाइल्ड फायर क्लाउड पे भेजता है, और फिर वहाँ से हमें आंसर आता है कि ये जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, इनके अंदर रिस्क कितना है, इनका नेचर इतना है, ये सारा का सारा हमें बता दिया जाता है। तो ये भी एक अलग से हम जब टेस्ट करेंगे तो अलग से एक प्रॉपर तरीके से एक लैब होगी। तो इन डेप्थ इसका डिस्कशन किया जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट है डिक्रिप्शन पॉलिसी का। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा फायरवॉल नहीं है कि अगर इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड ट्रैफिक अगर आता है तो वो उसको डिक्रिप्ट कर सके। दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। तो पॉलिसी कैसे बनेगी डिक्रिप्शन की, तभी पॉलो ऑल्टो वो रीड कर सकता है कि उसके अंदर जो कि सिक्योर टनल जा रही थी उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो एक्चुअल डेटा है उसके साथ में कोई और सिग्नेचर भी जा रहा हो। कैपेटिव पोर्टल का यूज किया जाता है गेस्ट यूजर के लिए, ये भी लैब आपको कराई जाएगी। और लास्ट में ये है कि पोलो ऑल्टो के अंदर इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे पैकेट की कैप्चरिंग की जाए, कैसे बैकअप लिया जाए, कैसे सिसलॉग सर्वर बनाया जाए। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट ये हैं, और एक कॉन्सेप्ट ये जो कि लाइसेंसिंग बेस्ड है। तो हमारे पास लाइसेंस बेस्ड पोलो ऑल्टो है जिस पे आप ये काम करेंगे। तो ये सारे के सारे लाइसेंस बेस्ड फीचर हैं। तो आज की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत करेंगे किससे, हम फिलोलॉजिक से शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये फिलोलॉजिक है जिसको हमने स्टडी करना है। फिलोलॉजिक के बाद फिर वहाँ पे जाएंगे। ये फिलोलॉजिक है जिसकी हमने स्टडी करनी है। जब कभी भी पोलो ऑल्टो में कोई भी ट्रैफिक इन होगा तो वो पोलो ऑल्टो उसको, जो ट्रैफिक इन हुआ है उसको एग्जिट करने से पहले ये 5 प्रोसेस अप्लाई किए जाएंगे। ये पोलो ऑल्टो है, ये लेट से ईथरनेट 0 है, ये लेट से ईथरनेट 1 है। अगर कोई ट्रैफिक यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है, तो जहाँ से इन हुआ है वो इन ग्रेस है, जहाँ से आउट होगा वो ई ग्रेस कहलाएगा। ये जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, ऑल दी प्रोसेस जो यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं 1 से लेके 5 तक, ये इनसाइड दी क्या होंगे, बॉक्स होंगे, यहाँ से यहाँ। उसके बाद ही ये पैकेट बाहर निकलेगा। अभी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो गया है।
7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, 7:30 पे क्लास होगी। ठीक है जी। ठीक। Yeah. Yes, sir. Sure, sir. Sure, sir. This meeting is being recorded. जी, आवाज़ आ रही है सबको? भुवनेश, मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है आपके। चैट बॉक्स में लिख दें आवाज़ आ रही है तो मैं क्लास शुरू करूँ। यस, आ रही है सर। भुवनेश, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। चैट बॉक्स में लिख दें अगर आवाज़ आ रही है, माइक्रोफोन अपना ठीक करेंगे। Hello. जी, आ गई, ठीक है। माइक में शायद आपकी कोई दिक्कत है। तो ये हमने डिस्कशन करना है कि जब कभी भी पोलो ऑल्टो में कोई ट्रैफिक एंटर होगा तो ये 5 प्रोसेस होंगे। तो वन बाय वन सारे प्रोसेस को हमने डिस्कशन करना है। फर्स्ट जो प्रोसेसिंग है उसका नाम दिया गया है इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। पोलो ऑल्टो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो है जोन। माइक्रोफोन अपना बंद कर लें, कोई सवाल हो तो पता करें। Sir, you are not audible, sir. मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को? अफजाल, आपको आ रही है भाई? आ रही है सर, आ रही अफजाल को आवाज़ आ रही है मेरी? Hello. यस, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? Yeah, yeah, yes, sir. Yes, sir. Very much audible now, sir. वो देखें कहीं दिक्कत है आपकी साइड में बार बार। Okay, sure, sure. हाँ, मेरी साइड से दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि ऑफिस में स्टूडियो माइक लगा हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं होती। Yeah, yeah, understood, sir. It is visible that whenever you are speaking, na, that tab it's on. Thank you, sir. तो यहाँ पर हर एक इंटरफेस के ऊपर मैंडेटरी है जोन कोड। तो लेट्स सी, ईथरनेट को हम ये मान लेते हैं दैट्स बिलोंग्स टू दी ट्रस्ट जोन। और जो दूसरा जो इंटरफेस है मान लेते हैं कि वो बिलोंग करता है अनट्रस्ट जोन से। तो whenever any traffic will hit on the ethernet 0, तो जो भी ट्रैफिक डिवाइस भेज रही होगी उसका कुछ ना कुछ आईपी तो होगा। और जहां हम जा रहे होंगे वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका भी कुछ ना कुछ आईपी होगा। फॉर एग्जांपल, हम यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो जब आप एसीएल बनाते हैं सीसीएनए के अंदर, तो उस एसीएल को आप ट्रैफिक आने के बाद में बनाते हैं या ट्रैफिक आने से पहले बनाते हैं? ट्रैफिक आने से पहले। Yes, पहले sir. आने से पहले। इसका मतलब आपको पहले से डिजाइनिंग और प्लानिंग पता होती है कि ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जाना है, तो पॉलिसी क्या बननी चाहिए। तो जो हम सीसीएनए में एसीएल बनाते हैं उसका नाम यहाँ पर क्या होता है? सिक्योरिटी पॉलिसी। वो एक बेसिक लेवल पर होती है, ये एक
एडवांस एसीएल आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक एडवांस एसीएल है। तो ये जितना भी हम ये पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग, ये बेसिकली ये फायरवॉल पॉलिसी ही है। इस फायरवॉल पॉलिसी के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट हमें नजर आएंगे। तो मैं पोलो ओल्टो का जो लैब का डायग्राम है उससे इस फ्लो लॉजिक को रिलेट करूं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं अपना लैब का डायग्राम खोलता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करवाया जा सके। वन 192 168 1.70 आपके क्रेडेंशियल बना दिए जाएंगे। कल आपको भी इसी तरीके से एक्सेस करना होगा rack.ncp नेटवर्क पे जाके। इसको हम ऑन कर देते हैं, 10 मिनट लगेंगे इसको ऑन करने में। जब ये ऑन हो जाएगा तो फिर वो जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्कशन हम दिखा सकते हैं कि हम जोन की बात कहाँ पे कर रहे हैं, वेव्स की वर्चुअल राउटर की बात कहाँ पे कर रहे हैं। तो वैन एवर एनी ट्रैफिक विल हिट ऑन द इंटरफेस, पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी जो एसीएल लगाते हैं वो भी हम इंटरफेस पर ही लगाते हैं। तो उसमें सीसीएनए में जो लगाई जाती है एसीएल, उसमें हम सोर्स आईपी ले रहे होते हैं, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल ले रहे होते हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ले रहे होते हैं। तो ये कौन सी एसीएल होती है सीसीएनए में? स्टैंडर्ड होती है कि एक्सटेंडेड होती है? स्टैंडर्ड सर। जी भाई, स्टैंडर्ड होती है कि एक्सटेंडेड होती है? स्टैंडर्ड एसीएल में तो केवल एक ही कंपोनेंट होता है, सोर्स आईपी का। ये एक्सटेंडेड एसीएल होती है जिसके अंदर हम सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। जब हम फायरवॉल की बात करते हैं और पोलोल्टो की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, यानी इसके साथ में जोन ऐड हो जाएगा। फिर और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो और क्या एडिशन हो जाएगा कि भाई यूज़र कौन है, एप्लीकेशन आईडी ऐड हो जाएगी, यूआरएल फिल्टरिंग कर सकते हैं ऐड हो जाएगी। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, बट ये वाली जो चीज़ें हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, ये वैसी रहेंगी जो कि लीगेसी थी। तो पॉलोल्टो ये कहता है कि वेन एवर द ट्रैफिक विल हिट ऑन माई इंटरफेस, तो ट्रैफिक जब हिट होगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि सोर्स कौन आ रहा है और डेस्टिनेशन कौन आ रहा है और प्रोटोकॉल क्या है और पोर्ट नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें उसको पता लग जाती हैं। लेकिन फायरवॉल पोलो ऑल्टो सबसे पहले जोन को देखता है। जैसे एसीएल बनी होती हैं वो टॉप टू बॉटम देखी जाती हैं, ऐसी फायरवॉल के अंदर जो मल्टीपल पॉलिसीज बनी होती हैं उसमें जोन डिफाइन होते हैं। विच जोन टू विच जोन, कौन से जोन से कौन से जोन में पॉलिसी बनाई गई है। तो वो देखता है सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन को सबसे पहले। अगर सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन, कोई आने वाला ट्रैफिक किसी सोर्स जोन या डेस्टिनेशन जोन से मैच करता है तो बाकी काम आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो लुकअप किया जा रहा है वो जोन का लुकअप किया जा रहा है। जोन के लुकअप के बाद अगर हम अपनी पॉलिसी के अंदर केवल जोन डिफाइन कर दें, जोन ट्रस्ट और डेस्टिनेशन अनट्रस्ट, तो हम देखेंगे कि पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेकिन हमने सब कुछ डिफाइन किया, A to Z डिफाइन किया हमने। सोर्स आईपी भी डिफाइन किया, डेस्टिनेशन आईपी भी डिफाइन किया, प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर दिया, प्रोटोकॉल पोर्ट भी डिफाइन कर दिए, यूजर एप्लीकेशन आईडी यूआरएल फिल्टर भी डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर हमने जोन को डिफाइन नहीं किया है तो पॉलिसी क्रिएट नहीं होगी। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी जो पार्ट है वो क्या है? जोन है। क्या ये सही है जो मैंने कहा है? पहले इसको वेरीफाई कर लें तो फिर आपको इस फ्लो लॉजिक को समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने जो डायग्राम अभी ऑन किया था ये पोलो ऑल्टो है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये अगर ऑन होकर आ गया, इसका आईपी एड्रेस कितना मिल गया है इसको मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू। ये मैनेजमेंट इंटरफेस है ग्राफिकल लेने के लिए। ये डायग्राम आपके पोर्टल में कॉपी कर दिया जाएगा। कितना आईपी मिला? 1.215। तो यहाँ पे हम जाएंगे और 192.168.1.215 और ये जो होगा ये HTTPS होगा। एंटर। एडवांस पे चले गए और यहाँ प्रोसीड टू पे चले गए। ये यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन और एडमिन है। वेट कीजिए। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं फ्लो लॉजिक का, बेसिकली वो दो चीज़ें उसके अंदर हैं, एक नेट पॉलिसी और एक सिक्योरिटी पॉलिसी। पहले सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई होती है, फिर नेट पॉलिसी अप्लाई होती है। तो हम सिक्योरिटी पॉलिसी को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी का टैब आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ पे मेरा माउस है ये पॉलिसी का टैब है, दैट इज पॉलिसी टैब है। इस पॉलिसी के टैब में अगर हम क्लिक करते हैं तो मल्टीपल तरह की पॉलिसीज नज़र आ जाएंगे। हमें किस में जाना है? सिक्योरिटी पॉलिसी में, दैट इज सिक्योरिटी पॉलिसी। ये सिक्योरिटी पॉलिसी है। इस सिक्योरिटी पॉलिसी में ये ऐड का बटन है। यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो एक अलग से ये फील्ड आ जाती है। इस फील्ड में हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हमने कुछ भी नाम रख दिया, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी POLICY पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने लिखा, तो सिक्योरिटी पॉलिसी किस में आप बना रहे हैं? TRUST, ट्रस्ट। ट्रस्ट के अंदर बना रहे हैं। ट्रस्ट से कहाँ पे बना रहे हैं? UNTRUST, अनट्रस्ट की तरफ वी आर मेकिंग दी सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहाँ पर जो सोर्स है ये आप देख रहे हैं सोर्स जोन। ये कलर आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर है, येलो कलर है, और डेस्टिनेशन में भी येलो कलर है। पोलो ऑल्टो में जहां जहां पर ये येलोइश कलर नजर आएगा वो फील्ड क्या है? मैंडेटरी है। या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अंडरलाइन दे रखा है थोड़ा सा जिगजैग करके। अगर हम सब कुछ डिफाइन कर दें, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर दें, ये आईपी एड्रेस को अगर हम देखते हैं, सोर्स आईपी एनी पे टिक है, यूजर एनी पे टिक है, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन का आईपी एनी के ऊपर टिक है, एप्लीकेशन के अंदर ये भी एनी पे टिक है, सर्विस के अंदर यूआरएल कैटेगरी एनी पे टिक है, एप्लीकेशन डिफॉल्ट है, कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट अलाउड है। मैंडेटरी जो पैरामीटर है सिलेक्शन के वो दो हैं। यहाँ पे नीचे का जो बटन आप देख रहे हैं ये हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट कब होगा? जब जोन डिफाइंड किया जाएगा।
अगर हम यहाँ पर भी ऐसा कर लें एनी जोन, और सोर्स में भी एनी जोन कर लें, तो क्या फिर पॉलिसी बनाने का कोई फायदा होगा? हाँ जी, नहीं नो सर। सर, नो सर। फायदा ही नहीं है, फिर तो राउटर ही बन गया। हम्म। तो right। जोन अगर बनाना होता है तो जोन बनता कैसे है? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस नेटवर्क टैब में धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे कुछ जोन हमारे पास पहले से बने हुए हैं, तो मैं इन्हीं जोन को अगर कॉल कर लूँ, एक जोन बना हुआ है मार्केटिंग, एक एचआर बना हुआ है। मैं नई पॉलिसी बनाने के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ कॉल कर रहा हूँ, बट मैं नहीं कॉल कर रहा तो जोन कुछ भी नाम डाल दिया पॉलिसी का, सोर्स के अंदर ये डिफाइन नहीं किया। यहाँ ऐड करने के बाद ये जो डायग्राम था, मैंने इस डायग्राम में सोर्स 1011 ले लिया, डेस्टिनेशन 2222 ले लिया। सोर्स जो है मैंने ले लिया 10.1.1.1/32। डेस्टिनेशन के लिए मैंने डेस्टिनेशन भी ले लिया 2222। एप्लीकेशन भी मैंने कुछ भी चूज कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन टेलनेट चूज कर ली। सर्विस के अंदर मैंने सर्विस डिफॉल्ट ले लिया या कोई सर्विस बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्विस बना दिया। क्या जरूरत होगी क्या नहीं होगी वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ही बताना चाहते हैं कि सब कुछ अगर फीड कर दिया जाए और जोन ना दिया जाए। ये पोर्ट नंबर 23 ले लिया हमने, सर्विस भी ले ली स्पेसिफिक। यूआरएल कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी को अलाउ करना है, कौन सी को हमने डिनाई करना है। जॉब सर्च ले लिया, सर्विस को अलाउ करना है या डिनाई करना है, यहाँ से डिनाई या अलाउ हम जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सब कुछ हमने ले लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये बटन ऑन होकर नहीं आया। कौन सा वाला? ओके वाला, कि पॉलिसी बना सकें। यस सर। अगर मैं कुछ भी ना लूँ, मैं इन सब को हटा दूँ जो मैंने लिया था, और मैं अगर केवल इतना डिफाइन कर दूं सोर्स जोन कौन है, अभी भी नहीं आया। डेस्टिनेशन जोन कौन है, बस आ गया, हाईलाइट हो गया, यस सर। पॉलिसी बन गई। यानी मैंडेटरी पॉलो ऑल्टो के अंदर सबसे पहले जोन का पार्ट है। अब ये मल्टीपल जो पॉलिसीज बनेंगी, जब कभी भी कोई ट्रैफिक आएगा तो वो इसी ऑर्डर में चेक करेगा, टॉप टू बॉटम। आपके आने वाले ट्रैफिक कौन सी पॉलिसी के अंडर आ रहा है, यानी विच जोन टू विच जोन। तो यहाँ से पता लग जाएगा भाई कौन पहले वाले ट्रैफिक के अंदर मैच कर रही है आपकी या दूसरे से मैच कर रही है आपकी, क्योंकि वहाँ पे यूनिक पॉलिसीज बनी होंगी। जिसमें बनी होंगी उसके अंदर जाकर फिर वो चेक करेगा कि भाई सोर्स आईपी कौन है और डेस्टिनेशन आईपी। तो पहले फेज में इन जोन को चेक किया जाएगा। तो जोन जब मैच कर गए किसी पॉलिसी के अंदर, तो ये देखा जाएगा कि सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी क्या है, यहाँ पर सोर्स आईपी 10.1.1.1 है, और डेस्टिनेशन आईपी कुछ ना कुछ तो होगा जहाँ ट्रैफिक जाना चाहता है। तो डेस्टिनेशन जो आईपी, जैसे सोर्स जोन में एड्रेस लिखा है, ऐसे ही यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि पोलो ऑल्टो ने नहीं दिया है। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एड्रेस। क्योंकि जब आप किसी साइट पर जाओगे तो उसका कोई एड्रेस होगा या नहीं होगा जी, कोई यस सर, डेस्टिनेशन होगा का सर। एड्रेस होना डेफिनेटली जरूरी सर। है। तो हम मान लेते हैं डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो 2021.9.7 है। तो अब जब कभी भी सिस्को के राउटर में कोई ट्रैफिक कहीं जाना होता है, तो उसका ऊपर जब भी कोई ट्रैफिक हिट करेगा सिस्को के राउटर में और डेस्टिनेशन पे जाना होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सिस्को का एक राउटर है, यहाँ पर एक मशीन लगी है ए, उसका आईपी एड्रेस 10.1.1 है, ये E0 है, एंड सेकंड इंटरफेस इज E1 है, और यहाँ पे एक मशीन लगी है बी,
और अगर मुझे यहाँ पर .2 पर जाना है, ये .254 है इस सबनेट का लास्ट आईपी और इस सबनेट का लास्ट आईपी है। इफ यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम ए मशीन टू बी मशीन, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो इसकी पिंग की रिक्वेस्ट अगर आपने भेजी, ये रिक्वेस्ट यहाँ चली गई। जब ये रिक्वेस्ट फॉलो सिस्को के राउटर पर पहुंचेगी, तो वो उसको 2112 पर भेजने से पहले किस टेबल का लुकअप करेगा जी? जब मशीन ए ने मशीन बी के लिए पिंग लिखा 20.1.1.2, इसने अपनी रिक्वेस्ट अपने इस गेटवे को भेजी, तो ये राउटर इस ट्रैफिक को, इस रिक्वेस्ट को 2112 पर भेजने के लिए कौन सी टेबल देखेगा? कैसे फाइंड आउट करेगा कि ये 2112 कहाँ पर मौजूद है? क्या चीज चेक करता है राउटर? जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा सर इससे। और तो कैसे पता लगता है भाई, कौन सी टेबल चेक सर करता है? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल। इतना आसान सा सवाल के अंदर इतनी देर क्यों लग रही है? राउटिंग टेबल। तो पोलो ऑल्टो में राउटिंग टेबल नाम नहीं होता। पोलो ऑल्टो में क्या नाम होता है? फॉरवर्डिंग लुकअप। बात समझ में आई? तो ये जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक किसी जोन से दूसरे जोन में जाना चाहेगा, तो जोन को मैच करने के बाद जो पॉलिसी बनी होगी उसमें सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी अगर मुझे जाना है, तो जब ट्रैफिक पॉलो ऑल्टो पे हिट करेगा तो वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए फॉरवर्डिंग लुकअप का इस्तेमाल करेगा, यानी राउटिंग टेबल का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? राउटिंग टेबल का यूज करेगा। अब एक टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पीवीएफ। क्या लिखा हुआ है? पीवीएफ। पीबीएफ, तो जो पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पीवीएफ है, ये बेसिकली पीवीएफ बराबर है पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग इक्वल टू दी पीवीआर प्लस आईपीएसएलए। ये सीसीएनपी में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ये डिस्कशन करते हैं कि इफ वी हैव दी वन सी, कस्टमर का एक राउटर है कस्टमर एज, और उसके दो आईएसपी से कनेक्टिविटी है PE1 और PE2, और ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। जो सीई है उसका जो लैन है उसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, राउटिंग कर दी गई है। वी आर यूजिंग दी सिस्को राउटर। सिस्को राउटर में बाय डिफॉल्ट कौन सी स्विचिंग एनेबल्ड होती है? सेफ। सेफ का नाम सुना है जी भाई? नो, नहीं। इसको एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग कहलाती है। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल है। तो जब कभी भी सिस्को के राउटर पे जाने के लिए, कहीं जाने के लिए दो रास्ते होंगे, पाथ 1 और पाथ 2, दैट इज पाथ 2, ये पाथ 1। अगर हमारे पास दो रास्ते हैं और हमारा ट्रैफिक यहाँ से आता है लैन से बाहर जाने के लिए, ये ट्रैफिक यहाँ से आता है, तो इस ट्रैफिक के यहाँ से आने पर वो कौन से रास्ते को प्रीफर करेगा? जबकि इसकी राउटिंग टेबल में दोनों ही रास्ते मौजूद हैं, दोनों का इसकी ही दो, मैट्रिक वैल्यू कम होगी ना सर? दोनों का ही एलएम, एडी और मैट्रिक। सबसे पहले एलएम चेक किया जाता है, फिर एडी चेक किया जाता है, फिर मैट्रिक चेक किया जाता है। ये एक ऑर्डर है। अगर ये तीनों चीजें कॉमन हैं तो राउटिंग टेबल में दोनों रास्ते आ गए, यानी पाथ 1 भी आ गया और पाथ 2 भी आ गया। तो क्या दोनों रास्तों से जाएगा? आंसर इज नो। ये डिपेंड करेगा प्रोसेस स्विचिंग के ऊपर। तो ये आपके पास ये स्विचिंग टेक्निक है। स्विचिंग टेक्निक सेफ अगर लगा है,
कोई एक रास्ते से दोनों ही डिवाइस का ट्रैफिक मूव करेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवीएफ यानी पीवीआर के थ्रू कि इसका ट्रैफिक जब यहाँ पर आए तो इसको इस वाले रास्ते से जाना चाहिए, और अगर ये लिंक टूट जाए तो फिर इसको इससे जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीसीएनपी में हम एक एसीएल बनाते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या बनाते हैं, एक राउट मैप बनाते हैं। तीसरे नंबर पर हम क्या बनाते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। एसीएल को रूट मैप में कॉल किया जाता है, रूट मैप को पॉलिसी में कॉल किया जाता है, और पॉलिसी को इंटरफेस में यानी यहाँ पर कॉल किया जाता है, ताकि जब एसीएल में जो पैरामीटर डिफाइंड है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट, जब वो ट्रैफिक आए तो वो इस रास्ते से जाना चाहिए, अगर ये टूट जाए तो इससे जाना चाहिए, फिर उसमें हम आईपीएसएलए का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये बराबर है पीवीएफ के। तो पॉलो ऑल्टो ये कहता है कि जब ट्रैफिक मेरे पास आएगा, सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन अगर मैच हो जाता है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी पर जाने के लिए अगर पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है तो पीवीएफ को प्रीफर किया जाएगा, और अगर ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, नॉट कॉन्फ़िग, अगर ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर फॉरवर्डिंग लुकअप लेंगे। यानी अगर पीवीएफ है तो इसका मतलब हो गया कि जो पीवीएफ है, या यू कैन से पीवीआर है, इक्वल टू पीवीएफ है, ये टॉप के ऊपर है। और जो ट्रेडिशनल था कॉन्सेप्ट एलएम का, एडी का मैट्रिक जो हम सीसीएन एनपी में पढ़ते हैं, इसके थ्रू ट्रैफिक का लुकअप होता था बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है तो इसको नहीं देखेंगे, पहले नंबर पर किसकी बात मानी जाएगी, जो इस लिखा होगा, ये क्या होगा, ये ऑर्डर है हमारा, इसको मानो। अगर ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो यू कैन यूज योर सेल्फ, आपके पास डिसीजन ले सकते हैं कौन से रास्ते से जाना है। इसके लिए हम ये देखेंगे कि अलग से एक लैब होगी, जो कि अलग से एक टैब होगा जो इसी नाम से होगा, पीवीएफ के नाम से, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग के नाम से। तो कहने का मतलब ये है, जितनी चीजें फिलोलॉजिक के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, हर एक टैब के ऊपर एक लैब है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर हम उसको ना खोल कर दिखाएं आपको, तो फिर ये ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक बकवास हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हर एक चीज को वहां से कोरिलेट करेंगे तो फिर समझने में आसानी होगी कि जोन भी डिस्प्ले होता है, सोर्स आईपी भी है, ये टैब भी मौजूद है। तो हमने इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग के केवल ए, बी और तीन, इन तीन पार्ट का डिस्कशन आज किया। कल इसके आगे का पार्ट डिस्कशन करेंगे, कल फिलोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। कमिंग सैटरडे में फिर इसकी लैब शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आज के Sure. लिए फॉलो ऑल्टो वालों के लिए इतना ही है। इसको वॉइस रिकॉर्ड, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर देंगे अभी। रिकॉर्ड हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, आपके पोर्टल में पड़ जाएगी। आमिर सर से आप बात कर लीजिए, ये नंबर सबके पास होगा, 9910111641। ये नंबर है सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे आमिर सर मिलेंगे। ये तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में कंप्रेस हो जाएगी, फिर आपके क्लाउड पर डाल दी जाएगी। जिन लोगों की पेमेंट्स आ गई होंगी उनके लिए ये पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। कैसे लैब की एक्सेस होगी वो डिस्कशन कल होगा। इस वीडियो का एक्सेस आज उनसे आप यहाँ से ले सकते हैं। सीसीएनए वालों ने जो ज्वाइन किया है अभी, वो दोबारा से लॉगिन कर लें। सेशन को डिस्कनेक्ट कर लूँ, 5 मिनट के बाद लॉगिन दोबारा से कर लें।